Hi everyone, thanks for tuning into the next episode of Pursuit of Fitness. आज Pursuit of Fitness का थर्ड एपिसोड है. Pursuit of Fitness का जैसा कि हमारा ऑब्जेक्टिव है कि जो भी प्रॉब्लम्स या जो भी हर्डल्स एक न्यू कमर या बिगिनर को अपनी फिटनेस जर्नी या अपने फिटनेस करियर के दौरान आती है, उन सब हर्डल्स को एक एक करके एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कस करना और कोशिश करना कि उनका आसान सोल्यूशन हम निकाल सकें. आज इस डिस्कशन में हमारे साथ डॉक्टर मनोज हैं. डॉक्टर मनोज का इस फील्ड में 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है. ही इज़ अ वेरी सीनियर स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट. उन्होंने इंडियन हॉकी टीम के भी साथ एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपना योगदान दिया है. इंडियन टेनिस एसोसिएशन और नेशनल मार्शल आर्ट्स में भी उन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. उन्हें बेस्ट फिजियोथेरेपिस्ट ऑफ द ईयर 2018 का अवार्ड भी मिला है हेल्थ केयर टुडे की तरफ से. उन्होंने काफ़ी सारे एस्टीम्ड हॉस्पिटल्स और इंस्टीट्यूशन में भी, जैसे कि रामाकृष्ण हॉस्पिटल तमिलनाडु और आर्टेमिस हॉस्पिटल गुड़गांव में भी एज ए फिजियोथेरेपिस्ट अपना कंट्रीब्यूशन दिया है. सर, वेलकम टू द शो. आप आपकी खुद की फिटनेस जर्नी एज ए ट्रेनी और एज ए करियर के बारे में कुछ व्यूअर्स को बताएं. Right. Ankit, thank you so much. जैसे I like the name of the program. Pursuit of Happiness करके एक मूवी है, बहुत अच्छा मूवी है. राइट. एंड आपने Pursuit of Fitness करके एक अच्छा सा चैनल शुरू किया है. ऑल द बेस्ट एंड वेल विशेस. तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था थैंक्स टू माय मॉम. शी इज द वन हु हेल्प मी चूज दिस फिजियोथेरेपी फील्ड. And उसके बाद I think I never looked back in terms of I like this field so much, and I'm enjoying my work each and every day, and I think that's it. Yeah. So after like as you said, how did you start, like as a gym person or as a sports person, or how did you start? I mean, so this career, like I said, it was started because my mom helped me choose this career. I was not aware of this career actually. So once I went into the field, then when I came to know about this field where you treat people without medications, without surgery, and you help them in preventing their problems, which is prevention is better than cure bolte hain. Right. And also you help them improve their performance, like athletes में हम performance improve करते हैं. I was too much attached with this field, and I'm very happy to be a physiotherapist, and yeah, that's how it started. सर, आपकी डेफिनेशन फिटनेस की क्या है? आपके हिसाब से बीइंग फिट मतलब क्या है? आजकल इतने सारे लोग हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, कुछ लोग रनिंग करते हैं, डांसिंग में किसी की फ्लेक्सिबिलिटी बहुत बढ़िया है, अलग अलग स्पोर्ट्स कुछ लोग खेलते हैं. तो आपकी परिभाषा क्या है फिटनेस की? ओके, या सो फिटनेस का ये है, मतलब है कि इफ यू आर एफिशिएंटली फंक्शनिंग, उसी को हम फिटनेस बोलते हैं. इफ योर बॉडी एंड ईच सेल्स इन द बॉडी इज एबल टू फंक्शन एफिशिएंटली, आई थिंक योर फिटनेस इज बेस्ट एट दैट स्टेज एक्चुअली. फॉर एग्जाम्पल, आप सपोज कुछ डिसीज भी ले लीजिए, जैसे डायबिटिक है. It is the inability of certain cells to produce insulin efficiently. Then you become diabetic actually. That means that organ has become less fit or unfit actually. So I go to the cellular level. Each and every cells in our body, if it is able to efficiently function, that I would call fitness. Fitness is both body and mind, and you have to be fit from physically fit. I think we are discussing more about physical fitness here, but definitely body and mind को इसमें अलग नहीं कर सकते हैं. Body and mind जुड़ा हुआ है fitness में. So yeah, it's the efficiency of the person to deliver something. And ये जो fitness है, different people के लिए different ये है. For example, for marathon runner, fitness is different. For a bodybuilder, fitness is different. So it is about what you want and are you able to do that efficiently. For example, मैं बोलता हूँ जो ऑफिस गोअर्स हैं, जो sit with the laptop, I did a presentation called a new sports called sitting. न्यू स्पोर्ट्स मैं मानता हूँ sitting. मैं मानता हूँ कि sitting भी needs fitness actually.
That means you have to be efficient even in sitting actually. राइट जब efficient नहीं है तभी problems होता है. So राइट fitness is, are you efficiently doing the work which is given to you, whether it is marathon, cricket, football or sitting. So that's my definition. ऑसम ऑसम सर। तो आपने बताया कि फंक्शनली जो है बेटर रहना चाहिए, आपकी डेली फंक्शनिंग में एफिशिएंटली आपको एक्टिविटी आप कर सकते हैं। एंड देन यू ऑल्सो Yeah. डिस्क्राइब अबाउट द सेल्यूलर लेवल, कि सेलुलर लेवल Yes. पे भी जो है आपकी फिटनेस, एंड यू कनेक्टेड विद द फिजिकल फिटनेस विद द मेंटल फिटनेस पार्ट ऑफ इट, द बॉडी एंड माइंड should be able to function properly and in a stable manner. Amazing. सर जैसा कि आप कई साल से इस फील्ड में हैं, आप क्रॉसफिटर्स को भी एंटरटेन करते हैं, आपका जो क्लिनिक है उसमें, देन स्पोर्ट्स पीपल आल्सो कम टू यू एंड देन मेनी अदर पीपल कम टू यू। तो कौन सी ऐसी कॉमन मिस्टेक्स हैं जो आपने देखी हैं जो आमतौर पर लोग करते हैं अपनी फिटनेस जर्नी के दौरान? ओके, जो मिस्टेक्स जो करते हैं, राइट, जिसकी वजह से इंजरीज होता है, या राइट राइट सो मोस्टली इफ यू सी, yes, like you are into an activity, that means there will be a lot of wear and tear in the body, right? So which is natural process, but body has the ability to completely heal itself and come back actually. वो जब नहीं कर पाता है, जब आप लोडिंग बहुत ज्यादा कर देते हैं एंड यू नॉट गिविंग एनफ टाइम फॉर द बॉडी. दिस इज द most important problem actually. Otherwise, as an athlete, you can lift 5 kilo to 500 kilos also if you do it in a very phased manner actually. So हमारा for example, हमारा 80% of the injuries are training errors बोलते हैं. That means आपने सुना होगा too much too soon. This is one thing which they say. So 80% of the injuries are because of training errors. मतलब ट्रेनिंग वॉल्यूम आपने बहुत ज्यादा बढ़ा दिया या ट्रेनिंग इंटेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ा दिया. सो दिस इज द मोस्ट कॉमनेस्ट मिस्टेक. एंड फिटनेस मेरे ख्याल से इट्स अ जर्नी एक्चुअली. इट्स नॉट दैट कि मैं एक महीने जिम करूंगा उसके बाद बंद कर दूंगा. नो, इट्स अ जर्नी. तो जर्नी में आई थिंक वी नीड टू टेक इट एज अ लॉन्ग टर्म अप्रोच and we should not really hurry up too much unless until it's good to set targets actually. Suppose मैं 6 months में मैराथन रन करूंगा, इट्स गुड टू सेट टारगेट्स एंड पुश अकॉर्डिंगली बिकॉज वो एक मोटिवेटिंग फैक्टर है. बट समटाइम्स यू सेट द रॉन्ग टारगेट्स एंड ट्राई टू गो टू फास्ट or you're not able to do that. So that is where we have issues mainly, which is 80%. बाकी तो छोटा छोटा एक्सीडेंट्स होता रहता है which is okay, which can be treated, but 80% can be prevented if you take care of your training. That's where the important role of trainers come in, where even if you are hurrying up, they'll be able to educate you on, see, this is the volume. For your age, I feel this volume is going to be good. अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो कब कम करना है, कब ज्यादा करना है. So this is the reason that everyone who's doing a fitness should take the help of a good fitness trainer also. Yeah. राइट. तो अभी जैसे सर बहुत सारे ऑप्शंस हैं मार्केट में, जैसे कुछ लोग अपनी फिटनेस जर्नी जो स्टार्ट करने वाले हैं तो उनको कन्वेंशनल जिम का ऑप्शन होता है, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ के ऑप्शन होते हैं, आजकल क्रॉसफिट, जुम्बा, पिलाटेस, काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं. सो हाउ शुड वन गो अबाउट डिसाइडिंग कि उनके लिए क्या ऑप्शन बेहतर है, मतलब उनको कौन सी चीज़ सिलेक्ट करना चाहिए उनकी फिटनेस जर्नी के लिए? राइट, वेरी नाइस क्वेश्चन एक्चुअली. ये दिस सवाल everyone should ask themselves actually in terms of what I want. Everything is dependent on that actually. For example, I want a lean body. Right. Then you're going to go where it is all cardiovascular kind of a fitness. Right. Or you're going to go with less weight, high repetition kind of an activity. I would want to run marathon. Then your training is going to help support that marathon actually. Right. I want to do, for example, I want to look fit actually in terms of I need to have a certain body type. Then you go and work on anaerobic capacity where you'll have to build that body in particular shape. So it completely depends on what you want, and what you want को जो हम fitness trainer समझ के वो help करेंगे. I think that's the most important part actually. Otherwise, any fitness program is okay. It is the choice that you make consciously about what you want.
You can do yoga, you can do Pilates. Everything has got some advantages, and you can just mix it up also. Sometimes I say you can mix one or two things. That is one main criteria. When you're choosing something, that's when your physio or fitness trainer comes into play, where he tells you that, see, this is your body type. I feel that this would be much better for you in terms of you achieving your goals. That's why professional help is needed Right. in terms of when you start a professional career, when you start a training program. Sorry, yeah, राइट राइट yeah, जैसे कि आपने बताया कि खुद को इवैल्यूएट कर सकते हैं और खुद को इवैल्यूएट yes, करके खुद की गोल सेटिंग बना के एंड विद द हेल्प yes, ऑफ प्रोफेशनल्स फिर डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे लिए क्या जो है वो बेटर है आउट ऑफ ऑल better रहेगा. ऑप्शंस अवेलेबल Yes, इन द इंडस्ट्री yes. दीज डेज राइट That's right. मैं क्या चाहता हूँ और मैं कहाँ जाना चाहता हूँ, राइट उसके लिए सही रास्ता कौन सा है, राइट that a professional will be able to help. राइट Yeah. राइट या अमेजिंग आंसर एंड सर जैसे कि मैंने देखा है कुछ लोग जो हैं एक दो साल तक वर्कआउट करते हैं या कोई फिटनेस एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं या फिर कोई स्पोर्ट्स एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं उनको अपना इंटरेस्ट इस फील्ड में काफ़ी डेवलप हो जाता है तो और उस फील्ड में फिर वो सोचते हैं कि क्या इस फील्ड में कोई करियर ऑप्शंस हैं या फिर आगे जा कर के करियर में स्टेबिलिटी भी है कि नहीं इन ऑप्शंस में तो उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है इस फिटनेस फील्ड में करियर ऑप्शंस किस तरीके के हैं और आगे जाके स्टेबिलिटी है या नहीं पर्टिकुलरली अपनी कंट्री में जहाँ पे फिटनेस बहुत ज़्यादा अभी स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में नहीं है जैसे कि इफ़ वी कंपेयर इट विद यूएस in US, even the payment which is given to the fitness trainers and everybody, as we compare it with India, is significantly higher as far as I know. So what's your takeaway कि stability in career कैसी है fitness में आगे जाके? Okay, fine. Okay. So मैं ये 2 मिनट हेल्थ का बारे में बात करना चाहता हूँ. Right, See, if you're in a good health, that means you're working on your health in preventing you from having certain diseases actually, right? So ये WHO का भी ये important ये है कि अगर कोई regularly fit रहता है, so the chance of them having certain, there is something called non-communicable disease like diabetes, hypertension, all those things. उसका एक ही इलाज अगर उसको ठीक करना है या प्रिवेंट करना है इज यू बीइंग योरसेल्फ फिट. right, तो हम फर्दर डिजीजेस को प्रिवेंट करना चाहिए. आने के बाद ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स हैं, दैट इज ओके, बट विच इज बेटर यू प्रिवेंटेड फ्रॉम गेट यू गोइंग इनटू द स्टेज, बिकॉज वंस यू क्रॉस सर्टेन स्टेजेस देन यू कांट रियली कम बैक. इन टर्म्स ऑफ सपोज कोई डायबिटिक हो गया है तो बहुत मुश्किल काम है उनको रिवर्स लेके आने के लिए ताकि वो नॉन डायबिटिक हो जाए. इट इज लेस चांसेस एक्चुअली. सो इसका important reason WHO ने बताया कि lack of physical activity is one important reason actually, and you see the number of this non-communicable disease are increasing, they're going up. इसका वजह से जो डेथ रेट भी बहुत ज्यादा हो गया है. So what we need to do is to prevent this, we need to start a new theme called Fitness India actually, where we focus on preventing this through fitness trainers and other people who was involved in this thing. तो ये फिर आप देख लीजिए कि इसका फ्यूचर करियर कैसा है. राइट, the increase in rate of diseases is because of people are not being fit actually. right, जो डिसीजेस है उसको हैंडल भी नहीं कर पा रहे हैं ठीक से. जैसे इंसुलिन आज शुरू किया एंड इंसुलिन का डोसेज बढ़ता रह जा रहा है, या कोई भी मेडिकेशन शुरू कर रहे हैं 25 mg से शुरू करते हैं, वो 50 75 जाता रहता है ऊपर. क्यों? क्योंकि आप फिट नहीं रहते हैं. अगर फिट रहते हैं तो उसको हम वहीं पे कंट्रोल कर सकते हैं. right, सो प्रिवेंट करने के लिए भी फिटनेस चाहिए और एक प्रॉब्लम को ट्रीट करने के लिए भी फिटनेस एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. सो आई फील द फ्यूचर इज प्रिवेंशन ऑफ डिजीजेस डेफिनेटली. तो उसमें डेफिनेटली फिटनेस ट्रेनर्स का रोल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होगा ताकि वो डिजीज प्रिवेंट करने के लिए. बट फिटनेस ट्रेनर्स उस रोल के लिए रेडी हो जाना चाहिए by having structured education programs and keeping them in a training loops regularly. उसके लिए वो ready हो जाना चाहिए. Otherwise, there is a very bright future. And which one would you like? Prevention or आने के बाद उसको treat करना? Everyone would like prevention actually, right?
So definitely, and fitness guys play an important role in preventing diseases. So I see a bright future, and I see ये definitely होना ही होना है, because community के लिए support करने के लिए, help करने के लिए, community को healthy रखने के लिए उनका रोल बहुत महत्वपूर्ण है. What do you say? Yeah, it is very Yes, very important. important role. So Important very role. important role. So they need to definitely take this challenge and make our country and the whole world a fitter place. तो जैसा कि आपने बताया कि प्रिवेंशन इज़ बेटर देन टू बी क्योर्ड, और WHO के भी आपने कुछ स्टैटिस्टिक मुझे बताए. आज सुबह ही मैं एक स्टैटिस्टिक देख रहा था कि लगभग 7 करोड़ लोगों से ज़्यादा इंडियंस जो हैं आज डायबिटिक हैं, और काफ़ी सारे लोग, मतलब इंडिया जो है दिन पे दिन डायबिटिक कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड होते जा रहा है. आई थिंक इट्स सेकंड नंबर ऑन द लिस्ट, राइट, विच इज़ नॉट एट ऑल अ गुड साइन. तो इसके बाद भी जो हैं लोग काफ़ी सेडेंट्री लाइफस्टाइल इंडिया में काफ़ी डोमिनेटिंग है, फिजिकल एक्टिविटी और एक्सरसाइज नहीं कर पाते हैं, मे बी ड्यू टू लैक ऑफ टाइम और वॉट एवर रीज़न दे से. आपका इसमें क्या गाइडलाइन है, क्यों वो जो है स्टार्ट नहीं कर पाते हैं अपनी हेल्दी और फिटनेस लाइफस्टाइल? Yes, right. So अगर कुछ चीज हम करना है, you ought to be aware of those things actually. मतलब education about what is the effects of this problem. ये कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये मेरे ख्याल से लॉट ऑफ पीपल डोंट नो अबाउट दिस, बिकॉज वंस दे कम इनटू दैट देन दे से स्टार्ट सेइंग दैट ये हमको पता नहीं था, दैट वी कुड हैव हैंडल दिस थिंग. सो आई थिंक वी नीड टू डू अ लार्ज स्केल एजुकेशन प्रोसेसेस. इनको जिस भाषा में वो समझते हैं उस भाषा में उसको बताना पड़ेगा कि दिस इज द एडवांटेज ऑफ इट, अगर ये नहीं करते हैं ये नुकसान हो सकता है. what is the advantage of preventing these problems, right? And ये कितना उनका लाइफ में कितना नुकसान करता है. once we start educating them, I think they will be coming into the program where as a physical therapist we are educating people. हमारा जो भी patients है वो हमारे पास हमारा जो वैल्यू है ये हम फॉलो करते हैं, we educate, enhance and empower them. मतलब जो हमारे पास आते हैं उनको हम एजुकेट करते हैं कि क्यों ये प्रॉब्लम हुआ. दैट इज द फर्स्ट स्टेप व्हिच वी डू इन आवर फिजिकल थेरेपी. द सेकंड थिंग इज एनहांस देम. जिस प्रॉब्लम से वो दिक्कत हो रहा है उससे उनको बाहर लेके आते हैं. दैट इज कॉल्ड एनहांसमेंट. जब वो एनहांस हो जाते हैं, मतलब वो प्रॉब्लम से बाहर आ जाते हैं, तब दे आर एबल टू फील दैट हाउ गुड देयर बॉडी इज. एंड जो हम पहले ही बताए थे एफिशिएंसी, तब वो एफिशिएंसी देख पाते हैं. फॉर एग्जांपल, आई एम एबल टू सिट फॉर 8 hours and be pain free. That is this thing. Once they are able to feel, for example, runners होते हैं जो मैराथन में पहले 3 hours में करता था, अभी मैं वो 2 hours 30 minutes में कर देता हूँ. So once they see that efficiency and once you educate them on that, they are able to continue this program. And I think एक तरफ education हो रहा है, but ये large scale में करने का और जरूरत है. We educate bigger masses and then involve them in definitely keeping themselves fit actually. Yeah, so as you said, fitness education, fitness literacy अभी इंडिया में काफ़ी पर्टिकुलरली अपनी कंट्री में बढ़ने का काफ़ी स्कोप है. पर्टिकुलरली आई सी इन टायर 2 cities and टायर 3 cities there is a huge scope. People are not aware of getting healthier and fitter. एजुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज यू सेड, और अवेयरनेस हम धीरे धीरे जो है इस फील्ड में बढ़ा सकते हैं. वेरी वेल सेड सर. नाउ आप सर इतने टाइम से, आई एम सॉरी इफ आई कैन ऐड वन मोर थिंग, उसके लिए फैसिलिटीज भी क्रिएट करना है. राइट, इट इज नॉट ओनली यू एजुकेट देम, वो अफोर्डेबल फैसिलिटीज हम क्रिएट करेंगे, जैसे अफोर्डेबल जिम्स, अफोर्डेबल स्विमिंग पूल्स, ये सब क्रिएट करेंगे. एंड you create that environment. Suppose आप घर के पास ही जिम है, affordable है, obviously you will go and do it actually. Right. So this is my this thing, that we should make it affordable also, so that it is easily reachable to everyone. Right. As you said, affordable और convenience ही काफ़ी important factor होता है. जैसे जिम अगर घर के पास है या कोई स्पोर्ट्स सेंटर अगर घर के पास है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है, तो बच्चों को भेजना और इवन खुद को भी जाना जो है काफ़ी इजी और कन्वीनियंट हो जाता है. इजी हो जाएगा. राइट, राइट. सो कमिंग टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप काफ़ी टाइम से रनर्स को और क्रॉसफिटर्स, जिम पीपल, स्पोर्ट्स पीपल एंड मैनी डिफरेंट एरेनास के लोग आपके पास आते हैं अलग अलग इंजरीज़ को लेके,
तो आपको क्या लगता है मेन कॉमन इंजरीज जनरली क्या होती हैं, कैसे उनसे बचा जा सकता है, और उनकी वजह क्या होती है, जनरली क्यों इंजरीज वो आ जाती हैं? श्योर, राइट, ओके। सो पहले मैं कॉमन इंजरीज जो बता देता हूँ। टिपिकली दो तरीके के इंजरीज होता है। सपोज इफ आई गिव एन एग्जांपल, एक रोप को कट करने के लिए दो तरीका है। वन, चाकू लेके कट कर सकते हैं, या उसको एक यू कैन जस्ट कीप रबिंग इट अगेंस्ट द सरफेस एंड इट विल वेयर ऑफ। राइट, इंजरीज भी सेम ही है। देयर इज accumulative injuries and there is injuries because of accidents. For example, ankle twist हो गया, that's an injury because of accident. So हम उसको अलग कर देंगे, but ये repetitive injuries which is most commonly happening because of overloading, उसमें थोड़ा सा ध्यान देंगे। So अगर हम कुछ गलत तरीके से करते रहते हैं, वो accumulate हो जाता है, धीरे धीरे से accumulate होके जब वो एक लेवल पार कर देता है, then you have injuries because of that, right? This is the most common kind of injuries when you go to gym. And ये क्यों होता है? Because like I already said, training errors. You're trying to do too much too soon, too fast. Actually, that's again with the good help of good education, you're going to prevent those training injuries. कौन सा एरियाज बहुत कॉमनली अफेक्टेड होता है? बैक इज वन मोस्ट कॉमन इंजरीज, shoulder and knees. These are the three commonest joints which gets injured actually. What is the reason for it? एक important चीज है हमारा बॉडी में, stability and mobility. Stability मतलब वो that area is stronger actually. Mobility means that area can move a good range actually, right? So ये area जो मैं describe कर रहा हूँ, the shoulder, neck, back and the knee, they are more mobile areas as compared to other areas. They are less stable actually. So जो भी हम मूवमेंट करते हैं वहीं पे होता है। ओके, एंड अगर वो भी गलत तरीके से करते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा आता है एक्चुअली मूवमेंट्स एक्चुअली। दैट्स व्हाई वियर एंड टियर वहां कॉमन है। अगर चोट भी लगता है उस एरियाज पे ही लगता है बिकॉज ऑफ देयर दिस थिंग। सो हम जब ये वर्क करते हैं इस एरियाज में, we would want to make sure that areas are stabilized before we start a good strengthening program. For example, runners को हम क्या करते हैं, before they start their running program, we assess them for like a pre-assessment this thing before the running they can start their running career or running this thing. So इसमें हम clearly हम assess करके बता देते हैं कि कौन कौन सा weak areas है, कौन कौन सा stiff areas है, so that they can prevent injuries actually. So understanding the baseline कि baseline आपका 20% है, baseline आपका 30% है या 40% है, through assessment will help you set your target actually. Because when you go and work out, you need to know where you stand and where you want to go. Then उसको structure हम अच्छा कर सकते हैं. So जब ये structure हो जाता है, the chances of having injury is very less. So like I said, typically there is three areas: back, neck and the knee and the shoulder, which you commonly get injury. So हमारा I think you might know this FIT principle: frequency, intensity, time and type actually. ये हम उसको assess करके वो follow कर लेते हैं, a structured program, then we can prevent those injuries. And also you have to set goals, which is smart goals actually. So मैं ये goal set कर रहा हूँ, for example I want to bring a six pack actually. Right. Can you do that in 1 month? No. Or 6 months? So you need to know 1 month is not possible. I am 40, I am 20. It's different for both actually. So I have a back problem, I don't have a back problem. Again, it is different. So हम smart goals set करना है and definitely FIT principle follow करना है. Again, which helps in prevention and it'll enhance your performance also. राइट. सो हाउ कैन वन गो अबाउट सेटिंग इज गोल? जैसे कि आपने गोल सेटिंग वाला पॉइंट बताया, मैं पर्टिकुलरली वेट लॉस क्लाइंट्स को अगर के संबंध में अगर बात करूं कि somebody who is like 100 kgs and he or she wants to reach 70 kgs, right? Now how should he or she should approach about एक महीने का गोल क्या होना चाहिए, या 6 महीने का गोल कैसे होना चाहिए, 1 साल का गोल कैसे? गोल सेटिंग में आप किसी को हेल्प करते हैं जनरली? Definitely, right, okay. So yes, पहले हम उनका initial baseline values देख लेते हैं. What is their fitness level, what is their age,
what is their food habits, ये सब वही है. Initial assessment is very very important to see whether how much time you will take for to reach that goal actually. Suppose मैं 20-year-old को ये करवाता हूँ और 50-year-old को करवाता हूँ. You think that the timelines are different? Definitely Right. different. Right. So first is consider everything. That's why there should be a structured approach in considering everything, your age, your occupation, your all those things, and give them the right timelines depending on their all those assessments. जब हम गाइडलाइंस पहले दिन ही सेट कर देते हैं, सपोज इफ समवन इज आस्किंग दैट आई वांट टू कट डाउन इन 2 months, you clearly say that, see, medically you if you're losing about 2.5 to 3 kilos in a month is considered to be safer side. Right. Are they willing to take that risks actually losing more than this? That Right. is risky actually, but someone is willing to take that risk within that permittable limit, you can help them. But definitely if there is no hurry, I will always advise them to use the medically suggested weight loss programs, and the medically suggested right ways of doing it. There are a lot of ways of doing it. अगर हम एक गोल को अचीव करना चाहते हैं सही तरीके से, सपोज इफ यू वांट 1 lakh, you can do that in a right way or in a wrong way also. So you always guide them to do it in the right way so that they reach where they would want to reach actually. वहाँ baseline value से help होता है, and कब तक वो चाहते हैं, 6 months चाहते हैं, and अगर नहीं बोलते हैं 3 months, again you start educating them. In 3 months, this is the problems. Are you willing to take this challenge? Yes, they should be able to weigh between what is the advantage of it, what is the disadvantage. जब वो weigh करके वो खुद आप समझा देते हैं और वो खुद वो decision बोलते हैं नहीं 6 महीने चाहिए, then the chance of them getting to the sticking to the program is very much, there is increased chances that they stick to the program and do the weight loss. Yeah. So you combine your knowledge and see what they want and then educate them on that and help them in starting the journey to a weight loss program. राइट, एज यू सेड कि ग्रेजुअल और स्टेडी प्रोसेस अगर रहता है तो वो लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. जैसा कि आपने बताया कि 2 किलो 3 किलो 2.5 किलो के आसपास अगर रेंज रखते हैं तो वो काफ़ी सस्टेनेबल और लॉन्ग लास्टिंग रहेगा. सर एक चीज़ जानना चाहता हूँ मैं, जैसे कि लोग जब जर्नी स्टार्ट करते हैं पर्टिकुलरली ट्रांसफॉर्मेशन की, तो न्यूट्रिशन वाला एस्पेक्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, देन स्लीप वाला एस्पेक्ट रोल प्ले करता है, देन फिटनेस पार्ट ऑफ इट डेफिनेटली, एंड द माइंडसेट पार्ट, यू हैव टू कीप दैट पेशेंस एलिमेंट ऑल द टाइम. सो ये तीनों चारों एलिमेंट पे जब काम करना होता है किसी को, तो हाउ शुड वन गो अबाउट इट, लाइक टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम. किस तरह से जो है थोड़ा न्यूट्रिशन भी इंप्रूव करना है, स्लीप पैटर्न भी इंप्रूव करना है, फिटनेस में भी रेगुलर कंसिस्टेंसी रखना है, कीपिंग द माइंडसेट एंड द पेशेंस ऑल्सो थोड़ा सा लेवल पे रख के. तो 3-4 चीज़ का कभी कभी कॉम्बिनेशन में लोग जो है कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं और छोड़ देते हैं बीच में. तो आपको उनके लिए क्या आप एडवाइस देंगे कि स्टेप बाय स्टेप कैसे वो चल सकते हैं? Right, okay. I always say that start simple actually. If I could give an example, someone was really struggling to restart the gym actually. So he was holding a big position in company and he had a lot of work because of which उन्होंने fitness बंद कर दिया था. So दोबारा restart करने में बहुत मुश्किल हुआ. Right. So when we said that simple this thing of just start with walking and then go about slowly, he was able to start that program in next 2 to 3 months actually. So my only mantra is keep it simple and start slowly. Once the discipline comes in, then you can choose where to go actually. But always when you start, keep it simple and go ahead. Definitely ये triangle है, sleep, training and nutrition. And without this is the base of any fitness training program. Without this base, no fitness training program can be started actually. इसका अलावा और एडवांस चीजें आते हैं, but this is the base. So you make sure that the patient or the client understands the base and he is ready to do all these things. Fitness is breaking the body and making it. Right. आप फिटनेस मतलब ये ब्रेक करते हैं, सपोज स्ट्रेंथ है 25% से ब्रेक करके देन यू गोइंग टू 28%. So if you're building a stronger wall, what you need is that you have to break the older wall. Definitely make sure that the cement which you are laying down is stronger than the previous cement.
and you need to give enough time for that cement to get stronger. So ये basics होता है. So they should follow that. I think keep it simple is the mantra. राइट जैसा कि आपने बताया कि एक एक स्टेप बाय स्टेप वॉकिंग से शुरू कर सकते हैं। आपने एक एग्जांपल भी बताया कि कोई काफ़ी सीनियर पोजीशन में है कंपनी के और काफ़ी टाइम बाद उन्होंने स्टार्ट किया, तो ही स्ट्रगल्ड विथ हिज रीस्टार्ट जर्नी एंड देन स्लोली ही टुक द थिंग्स और धीरे धीरे ही वाज एबल टू रिकवर एंड able to continue it for a very long time then. Yes, So yes. हमने काफ़ी सारी चीज़ों पे बात करी सर, आपकी फिटनेस जर्नी, फिजियो जो इंजरीज होती हैं जनरली, इंजरी प्रिवेंशन के बारे में, गोल सेटिंग के बारे में, करियर्स इन फिटनेस भी आपने इंट्रोड्यूस किया। वी ऑल्सो टॉक अबाउट कि सेडेंट्री लाइफस्टाइल के काफ़ी सारे डिसएडवांटेजेस हैं, वो भी आपने मुझे बताया। सो काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ। मैं एंड करना चाहूँगा इस शो को आपके इस थॉट्स के साथ कि मान लीजिए आपके सामने कोई भी अभी इंडिविजुअल है जो स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, काफ़ी टाइम से सोच रहे हैं और करना भी है, वेट लॉस भी करना है, थोड़ा बहुत अपनी लाइफ को भी स्ट्रक्चर करना है, डिसिप्लिन करना है, लेकिन थॉट्स स्ट्रीमलाइन नहीं हो पा रहे हैं और स्टार्ट नहीं कर पा रहे हैं, लाइक दे आर थिंकिंग इट फ्रॉम अ वेरी लॉन्ग टाइम, 6 महीने से। अभी उनके लिए आप क्या राय देंगे कि करना तो है शुरू, हाँ करेंगे, अभी टाइम भी लगेगा और बिजी भी अभी बहुत हैं, फैमिली में बहुत जो है बिजी हो गए हैं, ये लैंडमार्क्स, नए नए लैंडमार्क्स वो देते जा रहे हैं, बट व्हाट सजेशन विल यू गिव टू देम? So thoughts without action is of no use. राइट तो मेनली वो थॉट्स जो है उसको, थॉट्स तो हमारा आज सोच सकते हैं कि आई एम गोइंग टू गेट 6 पैक्स, एक्चुअली एब्स फॉर एग्जांपल, थॉट तो अब 1 सेकंड में आपने थिंक कर दिया एक्चुअली। राइट सो आई थिंक उसको एक्शन में कन्वर्ट करना इज अ डिफिकल्ट प्रोसेस, राइट? सोच तो यस बड़ा होना चाहिए डेफिनेटली, वेयर यू वांट टू सी, वेयर यू वांट टू रीच, एंड उसको इमेजिन करके टाइमलाइन, जैसे मैंने पहले भी बोला, स्मार्ट गोल सेट करके यू हैव टू स्टार्ट सिंपल, दैट्स द थिंग। सो अगर आपने बताया कि आई वांट टू गेट अ 6 पैक्स एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट टुडे, then it is going to be good if you start simple. Actually if you start simple, वही हमारा thoughts का and जो action का दिक्कत हो जाता है वहीं पे। मैं भी ये भी बोलता हूँ, इसको अनफिट थॉट बोलता हूँ, क्योंकि थॉट इतना है, एक्शन इतना है, तो इसमें भी आपको फिटनेस चाहिए। दैट थॉट कैन बी बिग टू स्टार्ट विथ सिंपल एक्शन। उसको इम्प्लीमेंट जब करते जाएंगे, देन आई थिंक यू विल बी, अगर डिसिप्लिन रहेंगे तो वो यू विल बी एबल टू स्टिकिंग टू दैट प्रोग्राम एंड इट विल बी सक्सेसफुल। सो आपका जो भी थॉट हो दैट आई वांट टू रन अ मैराथन, बट इट स्टार्ट्स विद द 1 स्टेप फर्स्ट एक्चुअली। तो वो पहला स्टेप लेके आप जर्नी शुरू कर दीजिए, जब फिर कैसे वहां पहुंचते हैं वो पता नहीं चलता है। राइट, सो जर्नी ऑफ 1000 माइल्स स्टार्ट्स विद अ सिंगल स्टेप, जो मुझे कोट याद आया आपकी बात सुन के अभी। राइट सर, आपने आपका वैल्यूबल टाइम इस शो को दिया। मैंने आपसे काफ़ी कुछ सीखा है पिछले 3-4 सालों में। यू हेल्प मी विथ माई नी इंजुरी फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम एंड नाउ इट इज़ रिकवर्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स अ लॉट फॉर ऑल दोज हेल्प। और परसूट ऑफ फिटनेस में आप आए, होपफुली व्यूअर्स को भी काफ़ी कुछ सीखने, और मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आपने आपका वैल्यूबल टाइम सारे व्यूअर्स को और मुझे दिया। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। एज ग्रेसफुली। एज ग्रेसफुली। थैंक यू वेरी मच। थैंक्स।